آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نئی تجارتی راہیں ہموار کرنے کی کوششیں۔ روانڈا کی ہائی کمشنر ہریرما فاکو کی فیڈمک آمد، چیئرمین رانا اظہر وقار اور سابق صدر ایف سی سی آئی ریحان نسیم بھراڑا سے ملاقات، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے باہمی تعاون کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ روانڈا کی ہائی کمشنر ہریرما نافاکتو کی فیڈمک آمد، چیئرمین رانا اظہر وقار اور سابق صدر ایف سی سی آئی ریحان نسیم بھراڑا سے ملاقات۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد علی نارو جی، علی بتائیے گا۔ جی بالکل، روانڈا کی جو ہائی کمشنر ہیں وہ فیصل آباد فیڈمک پہنچی ہیں، جہاں پر تجارت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار کے ساتھ خصوصی ملاقات کی گئی ہے۔ میم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میم ٹیل می دیٹ وٹ یو تھنک اباؤٹ دیٹ ان وچ سیکٹر وی شوڈ ٹریڈ انکریز اور اسٹارٹ؟ Thank you so much. First of all, I want to congratulate Chairman of FEDMAC and just for the warm welcome according to us for this beautiful real estate and industrial zone in Faisalabad. And the second, we are very thrilled to see how we can collaborate especially in textile industry and packaging. But also we can open the avenue even for others industry. اچھا بالکل، جو روایتی جاری ہے ٹیکسٹائل ہے یا کچھ بھی سیکٹرز ہیں، ان سے ہٹ کر بھی اب دیگر جو سیکٹرز میں بات کی جائے گی۔ رانا اظہر وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب بتائیے گا، روایتی جو ہماری تجارت ہے وہ یورپ کے ساتھ جاری ہے، امریکہ کے ساتھ جاری ہے، افریقہ کی طرف اب جانے کا سوچ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچھی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم روانڈا کے ساتھ ہم کوئی بزنس اپنا مینیج کر سکیں، تو ڈیفینیٹلی ایز اے ایکسپورٹر اور ایز اے بزنس کمیونٹی سے بلانگ ہونے کی وجہ سے ہم کوشش پوری کریں گے کہ ہم لوگ وزٹ کریں اور ان کے ساتھ اس طرح کے جو چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں وہ امپورٹ کریں، اور ہم جو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔ ہم یورپ سے ہٹ کے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کے کنٹریوں کو فوکس کریں اور وہاں پہ ہم اپنا قدم جمائیں انشاءاللہ۔ اچھا بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم روایتی جو تجارت کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر نئے نئے ممالک کی طرف بھی رخ کریں۔ جی بہت شکریہ علی آپ کا۔ فیصل آباد میں قومی پیغام امن کمیٹی کی جانب سے مارکہ حق بنیان مرصوص سیمینار میں شریک علماء کرام نے پاکستان افواج کے کردار کو سراہا۔ بولے، گزشتہ سال پاکستان کو عظیم فتح نصیب ہوئی تھی، ہماری افواج نے بھارت کو زبردست جواب دیا تھا۔ مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ مئی کا ہے، گزشتہ سال 5 اور 6 مئی کو درمیانی شب ہندوستان نے پاکستان پر جارحیت کی اور رات کے اندھیرے میں پاکستان پر مختلف علاقوں میں حملہ آور ہوا۔ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے صبح کے سہانے وقت، فجر کے وقت، قرآن سے ایک نام بنیان مرصوص ہماری افواج نے متعین کر کے اور اس آپریشن کا نام رکھا آپریشن بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور فجر کے بعد افواج پاکستان نے، ہماری فضائیہ نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کو شکست دی اور ہندو کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا، اور اس کی چیخیں اقوام متحدہ اور امریکہ تک پہنچی، اور غیر ملکی قوتوں نے آج امریکن پریزیڈنٹ جو پاکستان کے سپہ سالار کے ساتھ رابطوں میں ہے، وہ اس کا آغاز آپریشن بنیان مرصوص کے دن ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں عزت دی، اتنی ہمیں فتح دی کہ آج اسلام آباد امن کا مرکز بن چکا ہے۔ وہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان ثالثی کروا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کا امیج پوری دنیا کے اندر واضح ہے۔ اس سے پہلے کبھی پاکستان کو اتنا نہیں سراہا گیا جتنا کہ آج، کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک پیس میکنگ کے طور پر سامنے آیا ہے، کہ پوری دنیا کی نظریں آج پاکستان پر ہے۔
अमन के लिए अमेरिका जैसी रियासत भी आज पाकिस्तान में अमन के लिए तशरीफ ला रही है। आज ईरान और अमेरिका की जंग को खत्म कराने के अंदर हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब का बहुत अहम किरदार है। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा काम है। तो लिहाजा पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए, पूरी उम्मत मुसलमान को फख्र है अपनी पाक फौज पर, सलामती के इदारों पर, कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर अमन की अलामत बनाकर पूरे पाकिस्तान को रोशन कर दिया है। और आज आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत और आबाई ख्वाजा इमरान नज़ीर ने 2 हफ्तों में CEO और MS के KPI बनाने की हिदायत कर दी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। सूबाई वज़ीर को WHO के तावन से जारी न्यूट्रिशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे में जारी ग़िज़ाई इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में माँ और बच्चे की ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने के इक़दाम पर भी गौर। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि आवाम को बेहतर ग़िज़ाइयत की फ़राहमी के लिए हुकूमत के संजीदा इक़दाम जारी हैं। कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लका अहकामात देंगे। न्यूट्रिशन सेंटर का दायरा कार मरियम नवाज हल्के तक बढ़ाया जाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर की न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के मौसर फॉलोअप के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी का अचानक टीचिंग हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का दौरा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी दौरे से लाइल्म निकले। कमिश्नर ने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में इलाज मुआवजे की तिब्बी सहूलियात का मुशाहिदा किया। मरीजों और लवाहकीन से अद्वियात मिलने के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर मुसर्रत जबी ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मशीनरी, अद्वियात स्टोर में स्टॉक और डॉक्टर्स की हाजिरी भी चेक की गई। अपडेट करें आपको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मुसर्रत जबी के दौरे से लाइल्म निकले। कमिश्नर ने मरीजों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुशाहिदा किया। मुसर्रत जबी ने मरीजों और लवाहिकीन से अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। मुसर्रत जबी ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मशीनरी फाल होने, अद्वियात स्टोर में स्टॉक और डॉक्टर्स की हाजिरी भी चेक की। पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में बड़ा इक़दाम। शहरियों की जानें बचाने के लिए खस्ताहाल इमारतों में जान डालने का फैसला। फैसलाबाद में बंद डिस्पेंसरीज दोबारा फाल करने की तैयारी। महकमा सेहत को 78 इलाजगाहों की तज़यीन व आराइश के लिए टास्क मिल गया। तिब्बी मराकज़ की बहाली से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात आएंगी। फैसलाबाद में बंद डिस्पेंसरियां दोबारा फाल करने की तैयारी। खतरनाक इमारतों में कायम 78 इलाज गाहों की बहाली का फैसला। जिलाई कौंसिल, सिटी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल डिस्पेंसरियां बहाल की जाएंगी। तज़यीन व आराइश और बहाली की मुंतज़िर 78 इलाज गाहों की फहरिस्त जारी। महकमा बिल्डिंग ने लागत का तखमीना लगाना शुरू कर दिया। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन हकाम का कहना था कि महकमा बिल्डिंग की जानिब से मुतल्लिका इलाज गाहों का तखमीना लगाया जा रहा है। तिब्बी मराकज़ की बहाली से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात आएंगी। इलाज गाहों के फ़आल होने से इलाकाई मकीनों को दहलीज पर इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हो सकेंगी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत 2 अजला में सरकारी स्कूल्स की खतरनाक इमारतों की बहाली का फैसला। इमारतों की बहाली और लैब्स में सहूलियात की फ्राहमी के लिए 9 अरब 59 करोड़ के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद के 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स की इमारतें बहाली की जाएंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने टेंडर्स तलब कर लिए। खस्ताहाल इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया गया। तमाम खस्ताहाल सरकारी स्कूल्स की इमारतों की बहाली का काम 9 माह में मुकम्मल किया जाएगा। जंग में तालीमी इनकलाब के लिए बड़े तरक्याती मनसूबे का आगाज। 160 सरकारी स्कूल्स में 1120 नए क्लासरूम्स बनेंगे। 7 स्कूल्स की खस्ताहाल इमारतों की दोबारा तामीर भी मनसूबे का हिस्सा होगी। तमाम तामीराती काम 9 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। तरक्याती मनसूबे के तहत जिले के मुतादिद तालीमी इदारों में नई इमारतें, क्लासरूम्स और बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। इंतहाई खराब हालत के हामिल स्कूल्स में 49 क्लासरूम्स दोबारा तामीर किए जाएंगे। तलबा की बढ़ती तादाद के पेश नज़र तदरीसी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। क्लासरूम्स की तामीर में RCC स्लैब, नमी से बचाव के लिए DPC और मियारी तामीराती मवाद इस्तेमाल किया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में 3 अरब की लागत से बनाए जाने वाले वाटर स्टोरेज टैंक गैर जरूरी करार। मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद ने वाटर स्टोरेज टैंक्स मंसूबे को बड़ी करप्शन करार दे दिया। इस हवाले से मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद का कहना था, टोबा टेक्सिंग में वाटर स्टोरेज टैंक्स की
सिरे से जरूरत ही नहीं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की बजाय महकमा लोकल गवर्नमेंट को मंसूबे सौंप दिए गए। कमीशन खाने की गर्ज से गैर जरूरी मंसूबा शुरू किया गया। तरक्याती कामों पर 50% फंड जाया किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के तामीराती कामों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। मटीरियल टेस्टिंग के लिए हुकाम का महकमा बिल्डिंग को मरासला। जेल के सिविल वर्क्स की तमाम मटीरियल की टेस्टिंग रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। टीएस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किए जाएंगे। अधूरे कामों की वजाहत भी तलब कर ली गई। आपको बताएं कि टैक्स केसेस निपटाने के दावों की कली खुल गई। मुकदमात तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स केसेस की तादाद 30,000 से तजावुज कर गई। जेर इल्तवा केसेस के बायस अरबों की टैक्स वसूलियां भी इल्तवा का शिकार। टैक्स माहिरीन का कहना है कि फैसले हकाइक के मुताबिक हों तो केसेस की तादाद कम हो जाएगी। हुकूमती दावों के बावजूद टैक्स केसेस को बर वक्त निपटाया न जा सका। सूबाई एपलेट ट्रिब्यूनल्स में ज़ेरे इल्तवा टैक्स केसेस की तादाद मजीद बढ़ गई। फैसलाबाद डिवीजन के ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 30,000 से भी तजावज। टैक्स माहिरीन का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत ज़ेरे इल्तवा केसेस में इजाफा हुआ। नामुकम्मल केसेस की वजह से अरबों रुपए की रेवेन्यू रिकवरी भी लटकी हुई है। FBI अफसरान के खिलाफ फैसलों से केसेस का बोझ बढ़ता है। ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो एक्चुअल चार्जेस बनते हैं, जो टैक्स पेयर के खिलाफ जा रही हैं चीज़ें, वो उसको मॉनिटर करके उसी के खिलाफ शोकाज किया जाए, बजाय इसके कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो शोकाज में ऐड करके फिर उसका ऑर्डर हो जाता है। फिर वो टैक्स पेयर भी जो है ना वो पहले कमिश्नर अपील के पास टाइम वेस्ट होता है, फिर ट्रिब्यूनल में चला जाता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग जो है ना एफर्ट है। टैक्स माहिरीन का कहना था कि केसेस से कारोबारी तबके के वक्त का ज़या होता है और उन्हें माली बोझ के साथ दीगर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा कस्टम्स का इन्फोर्समेंट समेत दीगर शोबेजात की वेयर हाउसेज के ऑडिट का फैसला। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले नॉन कस्टम पेड सामान का ऑडिट किया जाएगा। पकड़े जाने वाले सामान की गोदामों में मौजूदगी को चेक किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर मुतलका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अपडेट करें आपको महकमा कस्टम्स का इन्फोर्समेंट समेत दीगर शोबाजात के वेयर हाउसेज की ऑडिट का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले नॉन कस्टम पेड सामान का ऑडिट किया जाएगा। पकड़े जाने वाले सामान की गोदामों में मौजूदगी को चेक किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर मुतलका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अपडेट करें खिलाफ वर्जी पर मुतलका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।